उस साइट में हम कैसे लें जो वीडियो सब है। Click settings, click the share screen tab. Just give me 2 minutes, okay? 1-2 मिनट दीजिए सर. Trying to do something. Or I need to click settings, share screen tab. Setting and share screen. What next I need to do? Click side by side. Enabled है. Remote control, full screen mode, maximize window, window size, mention, screen sharing. Share this flow or flowing option. Directly to the images screen share to show green border around the shared content. मेरे में I don't know categories. So in the last lecture we did aldol condensation and cross aldol condensation. So right now we are going to write a few notes. उससे पहले आप एक बात सवाल कीजिए. Write a question. Write the aldol condensation product for acetophenol. Do this question. Okay, so Iram, Fahad, Madiha, Tarif Hassan, Cameron, Rabah, Shahid, and Shawiz, have your videos on. Na? At least say na, yeah. कि हाँ ऑन कर रहे नहीं कर रहे. You're not turning. हाँ ठीक है. Shawiz and Madiha, thank you. I'm waiting for Iram. Yeah, I can hear you. I'm waiting for Fahad right now.
I hope all of you know the structure of acetophenol. You know what is acet? Acet is CH3 C double bond O. Then you have benzene ring. So benzene ring will be like this. I hope you remember how to do these type of questions. You have to first of all क्या क्या करते हैं, किसको expand करते हैं पहले बताइए. हाँ guys, tell me. We will expand. पहले क्या expand करेंगे? Compound. Carbonyl carbon है ना? Carbonyl carbon. Then next what we will expand? Alpha carbon. Alpha है ना? और we will be expanding the alpha which is having hydrogen atom. एक बात हम आपको बता दें. This carbon atom here, it has hydrogen, but this carbon atom ना, this is also alpha carbon, but it is not having hydrogen. So you will expand this one. एक बार carbonyl expand कीजिए, and I have told you how to expand the carbonyl also. ठीक है, चलिए. ठीक, not much. I think 4 minutes should be enough for this. If you want to write, you can write the direct product. I think I explained you how to write the direct aldol condensation product also. ठीक है, अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो आप उसको भी डायरेक्टली बना सकते हैं. So here we don't expand the benzene, right? No, why will you expand the benzene ring? Okay, so we'll keep the benzene as it is. You will keep the benzene as it is.
Okay. Guys, please send me whatever you have done. You have expanded carbonyl, and then you have expanded the alpha, and then we have got. You send again. Why will you send again? CH3 C4. That's fine, na? क्या ठीक तो है? Yeah, I have to tilt my head a little. Sorry. I forgot to put H there. CH. CH. That's fine. ठीक है. I understood. Okay, it's okay. शाहिद, अरे यार आप लोग थोड़ा सा ना ऐसे भेजा करो फोटो, ऐसे मत भेजा करो फोटो, ठीक है? You have. अच्छा आपने ऐसे बनाया, कंडेंसेशन तक लेके जाना ना, यहाँ तक ठीक है. You have to heat it also. शायद आगे कर लीजिए, है ना? उसको कंप्लीट कर लीजिए. बस you need to remove the hydrogen and hydrogen and the hydroxy group. ठीक है शायद? ओके जी. आवाज नहीं आ रही है आपकी शायद. What happened? चलिए खैर, I hope you understood it, है ना? What happened others? Iram, Madiha, Rabah, please send your answers quickly. Tarif, you also send the answer. फहद, आपको ये आता है? Yes, sir, sending. Okay. रबा बेंजीन रिंग का रिंग तो लगा देते. गलत है ना आंसर? कैसे सही हो सकता है? दो स्ट्रक्चर आपने बनाए ही नहीं. अरे यार रबा, ऐसी मिस्टेक तो ना करे ना, कम से कम. यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपैंड. वो आपने एक्सपैंड किया ही नहीं, एक ही स्ट्रक्चर से कैसे बना दीजिएगा? आप गलत होना ही है. रॉन्ग, गलत है. एटलीस्ट मेक टू स्ट्रक्चर्स ना, कम से कम वो तो करें आप. डायरेक्ट कहां से आंसर लिख दीजिएगा? दो स्ट्रक्चर्स आपको बनाने ही पड़ेंगे. If you want to go through the long way or the short way also, directly making the aldol condensation product, the alpha beta unsaturated aldehyde or ketone. So for that also you need to make the two structures. एक स्ट्रक्चर से कैसे आंसर आएगा आपका? Okay, sir. इरम, अरे भाई आंसर जो भी किया प्लीज जल्दी भेजना. क्या कर रहे हैं आप लोग इतना टाइम से? Send me whatever you have done. Madiha, please send me whatever you have done. Tarif, send me whatever you have done till now. So I'm sending it only. Send it quickly. भेज दिया. ठीक है. हाँ, कार्बोनिल थोड़ा सा आपने अच्छे से एक्सपैंड नहीं किया जैसा हम चाहते थे, बट स्टिल ठीक है. हाइड्रोजन हाइड्रोजन ठीक है, ऊपर हुए नीचे ठीक है. करेक्ट करेक्ट, सही सही है. रहो, करेक्ट, वेरी गुड. अरे भाई साहब, मदिया ने क्या किया ये? यार सीधा सीधा आंसर भेजा करो यार, बड़ी मुश्किल होती है. एक, अच्छा दोनों हाइड्रोजन आपने हटा दिए, और फिर उसके आगे तो आपने बर्बाद कर दिया. फिर क्या किया आपने मदिया? हाँ, ये तो आपने ठीक है, बहुत बढ़िया, वो ठीक है बिल्कुल आपका, दैट यू हैव हाइड्रोजन हाइड्रोजन.
कनेक्ट करने के लिए तो आपको ठीक से रखना चाहिए था ना, कनेक्ट आपको करने नहीं आया। उसके लिए यू हैव टू राइट द रिएक्शन इन करेक्ट ओरिएंटेशन। इधर सी डबल, अरे भाई साहब नहीं यार, तारीफ आपने कुछ प्रैक्टिस नहीं की है, देख के समझ में आ रहा है आपने एक बार भी प्रैक्टिस नहीं की है, तारीफ है ना जी? तारीफ चलिए, ये तो गलत बात है ना तारीफ। चलिए देखिए गाइस, देखिए एल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट लिखने के लिए ना बहुत सारे तरीके हैं, वो कोई एक चूज करना पड़ेगा और वही फॉर्मेट आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप यू कैन नॉट राइट द रिएक्शन इन एनी वे, है ना, मतलब यू कैन राइट बट एक कंसिस्टेंट वे में आपको करना पड़ेगा सारे सारे काम। ठीक है, दोनों तरीका हम बता रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सपैंड द कार्बोनिल एंड देन अल्फा कार्बन। तो वो तरीका अगर हम देखें तो यू हैव CH3 that is attached with carbonyl carbon, C double bond O, and then the benzene ring like this. अब जब भी आपके पास बेंजीन रिंग हो, ठीक है, whenever you have the benzene ring and benzene ring is not taking part in the reaction, आपको पता है कि रिएक्शन जो भी होना है कार्बोनिल के साथ होना है, तो आपको बेंजीन रिंग बनाने की जरूरत नहीं है, you will write it as PH. Also you see that benzene ring is not having any group attached, right? Any further group attached नहीं, सिर्फ एक ही ग्रुप अटैच है। अगर यहाँ पे Br रहता तो फिर it would have been difficult ना, कि अभी हम ऐसे Br लिख रहे हैं, so this Br is in the ortho position, para position, what position it is in we would not know, ठीक है, but since we don't have anything else, we have only one group, so you can write it as PH. PH लिख दिया आपने, then you will expand the alpha carbon like this, carbon, one hydrogen here, the other hydrogen here, and the other hydrogen here. Then you have C double bond O. Again you will just write the pH, ठीक है, और यहां से आपके पास एक हाइड्रोजन इधर जाएगा। So first of all you are going to get CH3 carbon OH, the pH here as it is. Now this carbonyl carbon and alpha carbon will be joined. Carbonyl carbon and alpha carbon has joined. This alpha carbon, it had 3 hydrogens, now it has only 2 hydrogen. Then after that C double bond O and then pH. After this you will heat it. This H2O will be eliminated and you will get CH3 carbon. यहाँ पे अब आपके पास this is the last thing that we are going to write, so you can write the benzene ring. अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं benzene ring, ठीक है, double bond. Now this had 2 hydrogen, it will have only 1 hydrogen now, CH, and then PH की जगह भी आप benzene ring लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो देखिए, if I did not write my reactant in this particular manner, अगर हमने इस तरीके से नहीं लिखा होता तो गलती होने के बहुत ज्यादा चांसेस थे, ठीक है। So you have to start in a particular way. Let us suppose that you want to write the product directly. तो directly लिखने के लिए भी आपको बस वही करना है, you have to expand the first of all CH3 C double bond O. अब ये तरीका थोड़ा सा अलग हो गया कि ऑक्सीजन यहाँ पे I've expanded in a horizontal way, ठीक है, and then you have pH. Then you will expand the alpha carbon like this, carbon, hydrogen, hydrogen and hydrogen, ठीक है। उसके आगे क्या है, you have here C double bond O and then you have again the pH. अब आपको सीधा क्या करना है, you have to remove H2O, ठीक है। So what you will be getting, let me just move it a bit down. So you will have CH3 carbon. This carbon had double bond, it will have double bond. It had pH, it will have pH, and then this is attached with this carbon atom. This has only 1 hydrogen atom, then C double bond O. Then you have pH. pH is benzene ring. You can see both the products are same, CH3, C, pH, C double bond O, CH and benzene ring. Achha, yeah, I got it wrong here, my bad. This will be C double bond O and then pH. ठीक है, please write this down, those who have not done. ठीक है, तो आपको क्या मिल गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। मतलब समझ में आया कैसे करना है? Yes.
All of you done now? Writing? So, Yeah, Aram, you're saying something? yes, sir. So, मेरा structure तो नहीं है ना. Yeah? So, मैंने CH3 लिखा था PH के जगह on the right side. आपने CS3 लिखा हुआ है? ओ, Yes. हाँ, वो आपको वो PH होगा ना? ठीक है? क्यों पूछ रही हैं आप? या यस बोल रहे, क्या बोल रहे हैं आप? तो आपने मेरा स्ट्रक्चर सही बोला था ना, तो वो तो गलत हो गया था. क्या आवाज नहीं सही जा रही है, एक सेकंड. Can you speak a bit loudly, Aram? I can't understand what you're trying to say. So, आपने मेरा स्ट्रक्चर सही बोला था, right? हाँ, It's गलती correct. गलती So, गलती we गलती have a मेरी same. गलती. हाँ. नहीं, yes, no. Plus, balance, like, is everyone done? लिख लिया ना सबने? चलिए, after this you will write a note. Please write. Aromatic carbonyl compounds undergo automatic dehydration and directly forms alpha beta unsaturated compound. How many of you did the homework? Tell me now. I gave you guys homework. कितने लोगों ने किया था? Matiha, Iram, Baba, anyone? Half left. Half left. बाकी लोग तारीफ, शावेज, you will do it later. अच्छा, ठीक है. प्लीज उसको कीजिए, ठीक है ना? इफ यू हैव डाउट्स इन दैट ना, वो एनसीईआरटी का ही सवाल है आपका. इट्स अ गुड क्वेश्चन, वो अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा आपका एल्डोल कंडेंसेशन में. दे हैव आस्क्ड बोथ द थिंग्स कि आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स व्हिच आर गोइंग aldol condensation और नहीं देने वाले उनके बारे में भी. So you have to check whether they are having alpha hydrogen or not. Right, one more point. You have compounds like formaldehyde, HCHO. So it has only one carbon atom, है ना? देखिए ध्यान से देखिए, भी लिखेंगे. Formaldehyde will have only one carbon atom, and if it is having only one carbon atom, तो इसका alpha कुछ होगा ही नहीं. This already is functional group ना, HCHO. This is the functional group. Now functional group is attached to alpha carbon. Now we don't have any alpha carbon, so obviously we are not going to have any alpha hydrogen also. And if alpha hydrogen is not present, then it will not show aldol condensation. Similarly, please see, you have benzaldehyde, which has a structure like this. This is my functional group. This functional group is attached with the carbon atom. This is my alpha carbon. Now, if you look at this alpha carbon, if I make the double bond, single bond, then this alpha carbon, it is already having 4 bonds that you can see, 1, 2, 3, 4. So there will be no hydrogens here. So this benzaldehyde also will not show any aldol condensation. Okay. Similarly, if you have biphenyl ketone like this,
C double bond O. So here also both these carbon atoms, they are not having, these are alpha carbons and both of them are not having any alpha hydrogen. That is why this will also not undergo the aldol condensation. Please write, these don't undergo aldol, rather I should write self-aldol condensation. Undergo self-aldol condensation due to absence of alpha hydrogen. ठीक है, अब ध्यान सुनिए एक बात, सी इसको लिख लीजिए फिर हम समझाते हैं ना, प्लीज लिख लीजिए इसको। कंपाउंड्स दैट डोंट हैव alpha hydrogen can undergo cross aldol condensation with a compound having alpha hydrogen. With a compound having alpha hydrogen. ठीक है, सुनिए, if you remember what happens in aldol condensation and how we write the products, ध्यान सुनिए, then we should have, एक आपके पास क्या रहना चाहिए, there should be one compound which is having, एक का हम लोग क्या एक्सपेंड करते हैं, कार्बोनिल, सही है, एक का क्या एक्सपेंड करते हैं, कार्बोनिल, और दूसरे का बोलो, दूसरे का क्या एक्सपेंड करते हैं, और बोलो यार, इरम बताइए, क्या आप लोग शांत क्यों बैठे रहते हैं, माइक ऑन करके बोले, जब तक नहीं बोलिएगा नहीं ध्यान समझ में आएगा, बताइए, एक का क्या करते हैं, we expand carbonyl and for the other we expand alpha, ठीक है, so we should have two compounds. मान लीजिए जो जिसका कार्बोनिल आप एक्सपैंड कर रहे हैं ना, जिसका कार्बोनिल एक्सपैंड कर रहे हैं उसमें अल्फा नहीं है, तो क्या फर्क पड़ने वाला, कोई फर्क पड़ने वाला है उसको नहीं ना। आपके पास एक कंपाउंड ऐसा होना चाहिए फॉर व्हेन वी आर डूइंग क्रॉस aldol condensation. Please remember when we do cross aldol condensation we should have two different aldehyde और ketones. एक का उसमें क्या होना चाहिए, कार्बोनिल होगा और दूसरे में क्या हो, अल्फा। फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज आई एम राइटिंग, लिखिएगा ध्यान से, आई एम राइटिंग HCHO plus CH3CHO, ठीक है, so this compound it does not have alpha hydrogen, इसके पास alpha hydrogen है, दिखा सबको, all of you can see that, yes or no, please tell me, अरे हाँ ना कुछ तो दिखा, ठीक है दिखा। अच्छा ये बताइए, if this one is not having any alpha hydrogen तो इसका क्या एक्सपैंड करेंगे, इसका अल्फा तो एक्सपैंड हो नहीं सकता, हाँ बात समझ में आई सबको, मदीहा इरम, मदीहा नहीं, carbonyl करेंगे ना, because we don't have any alpha here, so we'll expand the carbonyl. How will we expand the carbonyl? We have hydrogen, we have carbon, double bond O, and then again a hydrogen atom like this. Clear है सबको, ठीक है। अब इसका क्या एक्सपैंड करेंगे, we will expand the alpha. हाँ इरम तो बोल रही है पता नहीं, लेकिन कौन सुन रहा है आपको, इरम माइक ऑफ करके बोलेंगे तो आप है, देखिए अब यहाँ पे क्या होने वाला है, देखिए ध्यान से, अब तो ये सारी चीजें आपको पता है, फिर से वही होगा, इधर जाएगा हाइड्रोजन, कार्बन, OH, अनदर हाइड्रोजन, देन देयर विल बी सिंगल बॉन्ड, इसके ऊपर दो हाइड्रोजन होंगे, हाइड्रोजन एंड दिस विल बी CHO एज इट इज, राइट, ये क्या हो जाएगा, CHO एज इट इज। आफ्टर दिस यू कैन हीट इट, ये निकल जाएगा, यू विल हैव CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, ठीक है। बट एक और चीज ध्यान रखिएगा, this particular compound it has alpha as well as carbonyl, तो इसका self aldol condensation भी होगा, है ना, ऐसा तो नहीं है ना। Please remember that this acetaldehyde that we are having, all the acetaldehyde may or may not meet the formaldehyde,
so there will be some acetaldehyde which will react with itself. होगा ना? अरे हाँ यार, ठीक है, चलिए। तो एक तो आपके पास ये तो क्रॉस वाला बन गया, एंड देयर विल बी सम रबा। आपको समझ में आया? रबा समझ में आया आपको? मतलब व्हाट सर? अरे आपको आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही आवाज, समझ में आया सर। हाँ, समझ में आया ना? क्या होगा? there will be some acetaldehyde which will be getting self aldol condensation, जिसका खुद का ही हो जाएगा, राइट? एक तो क्रॉस होगा और एक सेल्फ यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है? सो फॉर द सेल्फ यू विल गेट द डायरेक्ट प्रोडक्ट। लिखते हैं, कैसे लिखिएगा? यू विल हैव CH3, देखिए डायरेक्ट प्रोडक्ट कम से कम हम लोग लिख ही सकते हैं इस तरह से, CH3 C डबल बॉन्ड O हाइड्रोजन, ठीक है? और यहाँ पे आपके पास क्या होगा? विल हैव C हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर, एंड देन यू विल हैव CHO, ये इस तरह से, and you will have CH3 single bond CH double bond CH single bond CHO। चलिए, प्लीज राइट दिस डाउन। ऊपर वाला पॉइंट लिख लिया था सबने? No, sir. सबने लिख लिया था? नो सर, ये सर क्या बोला भाई? आवाज ही नहीं आ रही, मेरे ईयरफोन खराब हो चुके। चलिए लिखते हैं आराम से। आई एम थिंकिंग कि एंडुअल कंडेंसेशन बड़ा टाइम ले लेता है यार। तो ज्यादा टाइम जानते हैं किस वजह से लेता है? क्योंकि आई हैव टू स्टॉप एंड वेट फॉर योर आंसर्स। आई विल रिकॉर्ड अ वीडियो फॉर एंडुअल कंडेंसेशन। नेक्स्ट बैचेस में बोलेंगे रिकॉर्डिंग देख लीजिए आप एंडुअल कंडेंसेशन पर। बट ये हंस रही नहीं, सीरियसली बोल रहे हैं हम ये बात। राविश, आप खेलते हैं बैडमिंटन या कोई और खेलता है बैडमिंटन? I don't know. सॉरी, आपके भाई खेलते हैं? Yes, yes, sir. अच्छा, आप क्या खेलते हैं? I play volleyball, sir. Sometimes. सॉरी, व्हाट? Volleyball. वॉलीबॉल खेलते हैं। All of you done writing? Sir, can I explain the first structure? Sorry? Can I explain the first structure? First structure. What first Yes. structure? Sir, कहाँ दिखा? हाँ? Explain. Yes, sir. Explain. अच्छा, explain बोल रहे हैं आप। This one? Yes, sir. This one. No, this is HCHO, no? This compound. Yes, sir. So, ये आपके पास हाइड्रोजन, you have carbon like this, C double bond O and then hydrogen. उसको हमें थोड़ा सा ऐसे लिखा है। Got it? Yes, sir. Got it, na? So we will expand the because see, I am expanding the carbonyl of formaldehyde because it does not have any alpha hydrogen. ठीक है? That is why we are expanding the carbonyl of that compound. चलिए, is everyone done? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। Right, next topic. Determination of reactants from product of aldol condensation.
ठीक है. So we know that when we have aldol condensation, so there are two different steps in the reaction. In the first step, we get the beta hydroxyaldehyde or ketone, and when we are going to heat it, the elimination reaction ho jayega, and after the elimination reaction, we are going to get the alpha beta unsaturated aldehyde or ketone. Now, let us suppose we have been given the beta hydroxy. So first of all, we will take the case of right number 1, beta hydroxy. ऐसे लिखिएगा, if beta hydroxy aldehyde or ketone is given. Beta hydroxy aldehyde or ketone is given. ठीक है, ध्यान से देखिए. फॉर एग्जाम्पल आपको इस तरह से मिला रहेगा CH3, you have CH, then you have OH, and then here you will have carbon with a CH3 group here, and there will be one hydrogen, here one hydrogen, and then CHO. ठीक है. So this is the beta hydroxy aldehyde given to you. How will you, आपको ये पता लगाना कि इसका reactant क्या था. What was the reactant of this particular product? है ना, ये aldol condensation का एक product है, aldol. So what you need to do, you need to identify the alpha and beta carbons. First of all, identify the group. This is your group. Then attached to it will be alpha, attached to it will be beta. एक second. इसमें एक सेकंड पेज, you write it like this, CH3 CH2 in carbon. हाँ ठीक है, this will be beta. Okay, now what you need to do, you just need to break this two things. Alpha और beta के बीच में आपको क्या कर देना है, bond को तोड़ देना. You break alpha and beta, you see what you have got. You have got 1 2 3. You have got 1 2 3, and if this is a primary alcohol, then वो aldehyde होगा. So you will convert CH3 CH2, and this will be converted to CHO. Plus here also the same thing, CH3 CH2 and CHO. So this is the aldol condensation or aldol product of what? It is the aldol product of 1 2 3. This will be propanol. So when you heat propanol, that means if you heat 1 2 3 CHO in the presence of dilute NaOH, you will get 1 2 3 4 5 CHO. Here you will get OH, and here you will get CH3. ठीक है. So they have given you this product. आपको reactant बताना था. Similarly, एक सवाल कीजिए आप लोग. You have CH3 CHOH. Here you have CH2 and CHO. So this is the product they have given you the product. आपको बताना है कि reactant क्या था. This aldol product of what? आपको क्या करना हमने बता दिया. You identify the functional group, then identify alpha beta, उसको break कीजिए, number of carbon देखिए, उसके बाद आपको मिल जाएगा. After this you will do one more. CH3 CHOH. The thing is developed. Can you explain again how to do identity? Can you identify the functional group? आपको सबसे पहले identify करना what is the function. ठीक है. Okay. Alpha and beta. ठीक है. Okay.
Okay. and then you need to break it. आपने ब्रेक कर दिया, उसके बाद ये किया, वी आर गेटिंग ना, wherever you have the OH की जगह आपको क्या कर देना, C डबल बॉन्ड हो, ठीक है. So here we had CH3, CH2, and then CH is as it is, और CH डबल बॉन्ड लगा देंगे तो you will get what, propanol only, right? चलिए आप ऐसे कर लीजिए, मतलब प्रोपेनल आप सीधा मत लिखने की कोशिश कीजिए, यू राइट CH, और जहां पे आपके पास O था उसकी जगह, चलिए इसको मिटा देते हैं, ऐसे बना लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, C डबल बॉन्ड हो, ठीक है. बाकी उसके बाद यू हैव CH3, दिस CH इज प्रेजेंट, उसको CH2 कर दीजिए बस, ठीक है. गिव इट वन मोर हाइड्रोजन. So the hydrogen gets eliminated. कहाँ एलिमिनेट हो रहा है कुछ भी. देखिए हमने जो चीज, सॉरी वेयर, Where is the, how did it become double bond? डबल बॉन्ड कहाँ पे, ये वाला. Yeah, how did we get CHO? Like how did we get CHO? नहीं, ये रिएक्शन नहीं हो रहा है, ये रिएक्शन नहीं हो रहा है. आई होप ये रेट्रोसिंथेटिक एरर है, ये दिस इज द प्रोडक्ट, ठीक है. Oh, नहीं, okay. उल्टा जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं ना. All right. So we टॉपिक just में break- पढ़ा है डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्टेंट्स फ्रॉम प्रोडक्ट ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन. ऊपर से गया क्या? Hmm. हाँ, बाकी लोग को समझ में आया? जल्दी करें भाई लोग, बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हैं आप लोग को. वेरी गुड प्रभा, सही है. पहला वाला सही है, शाविस, वेरी गुड. सेकंड वन ठीक है, वेरी गुड. देखिए गाइस, someone else sent me the answer, शाहिद. हाँ, नहीं शायद आप थोड़ा सा, आपने थोड़ी सी हड़बड़ी कर दी ना. देखिए जरा, आपने बिल्कुल कटवट ठीक लगाया, लेकिन आपने थोड़ी सी हड़बड़ी कर दी. आपने व्हेन यू आर राइटिंग द प्रोडक्ट, आपने मतलब ऊपर से देख के चीजों को लिखा है, फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन, नॉट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर रिएक्टेंट. कैन यू सी, आपके पास CH3 है, देन यू हैव CH3, एंड देन इन द मिडिल यू हैव C डबल बॉन्ड. हो शायद समझ में आया मिस्टेक आपको? आपकी आवाज नहीं आ रही है वैसे, समझ में आ गया? ऐसे करो, ऐसे. हाँ ठीक. क्लियर गाइस, दोस्त हैव नॉट डन. चलिए माइक ऑन करें. मदीहा, इरम, तारीफ एंड हु इज हियर, या इन्हीं लोगों ने नहीं भेजा. मदीहा, इरम एंड तारीफ, प्लीज हैव योर माइक ऑन. इरम, मदीहा, माइक ऑन करें. वन, अरे माइक ऑन करें जल्दी से. हाँ, 1 2 3 4, विच इज द फंक्शनल ग्रुप? 4. 4.
ओके, तारीफ आपने जवाब दीजिएगा। इरम एंड मदीहा, व्हाट इज द अल्फा कार्बन 1 2 3 4 में बताइए। 1 2 3 4, व्हाट इज द अल्फा? 3 is the alpha. What is the beta? 2. 2. इतना सबको आ गया था? Both all of you were able to. Yes, sir. Now what we need to do, tell me, क्या करना रहता है इसके बाद? बोलो। मदिया, आपकी आवाज नहीं आ रही। Like break the bond. Break which bond? Bond between Beta and Alpha alpha. and beta. अल्फा एंड बीटा के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। ठीक है, चल सी अगेन। देखिए, सो वंस यू हैव ब्रोकन, आपको 2 फ्रैगमेंट मिलेंगे। यू विल गेट दिस फ्रैगमेंट, है ना? यहाँ पे क्या, CH3 CH, और ये क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड O। सही है, कोई दिक्कत मत ही। हाँ, सेम ऐसे ही हुआ था ना। अरे यार, हाँ या ना बोलो, लिखना नहीं है। लिखा तो आपने Yes, पूरा sir. पिछले वाला भी तो लिखा था, कहाँ कुछ हुआ लिखने से। अब आपके पास क्या मिला है, देन यू हैव गॉट दिस फ्रैगमेंट। ठीक है, तो बेसिकली इफ यू रिमेंबर, we used to put the hydrogen from alpha carbon to the oxygen of carbonyl, याद आया? We used to put the hydrogen of alpha carbon to the oxygen। आपको उल्टा करना है बस। यहाँ पे आप देखिए क्या हो रहा है। This oxygen was having OH, यहां से हाइड्रोजन निकल के इसके पास चला जाएगा। So it will become what? CH3 CHO। समझ में आया सबको? Yes, sir. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सेम चीज यहाँ पे कीजिए ना। यू विल आइडेंटिफाई, दिस इज माय फंक्शनल ग्रुप। देखिए, दिस इज योर फंक्शनल ग्रुप, दिस इज योर अल्फा कार्बन, दिस इज योर बीटा कार्बन। यू विल ब्रेक द बॉन्ड फ्रॉम हियर, वहां पे ज्वाइन कर देते हैं, यहाँ पे ब्रेक कर देंगे। एंड व्हाट विल हैपन, दिस हाइड्रोजन विल शिफ्ट हियर, है ना? जो आपने प्रोडक्ट बनाने टाइम किया था उसका उल्टा करते जाना बस। नाउ यू हैव गॉट 2 फ्रैगमेंट्स। ये फ्रैगमेंट है आपके पास, सो हियर यू हैव CH3 single bond carbon, this carbon will be having double bond O। नीचे बना दें हम, चलिए नीचे। आप लोग को जैसे लिखना वैसे लिखिए, साफ सुथरे से लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत? आई होप दिस इज वेरी क्लियर नाउ, है ना? प्लस ये हाइड्रोजन यहां चला गया, सो CH2 became what? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। चलिए फटाफट छापिए, समझ के छापिएगा, बस छाप मत लीजिएगा, समझ के छापिए। दो क्लास लगा दिया आप लोगों ने एल्डोल कंडेंसेशन में। 2 क्लास एल्डोल कंडेंसेशन ही चल रहा है। चलिए, हम 2 पॉइंट आप लोग को लिखा देते हैं ताकि बाद में आप लोग को याद रहे कि करना क्या है। ऐसा बस एरो एरो और गोल गोल देख के आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा आखिरी में, है ना? तो व्हाट यू हैव टू डू, प्लीज राइट। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ब्रेकिंग दी अल्फा एंड बीटा बॉन्ड। ये तो आइडेंटिफाई, यू हैव टू आइडेंटिफाई अल्फा एंड बीटा, आइडेंटिफाई अल्फा एंड बीटा कार्बन्स। सेकेंड, आइडेंटिफाई करना है अल्फा और बीटा कार्बन को, देन ब्रेक अल्फा बीटा बॉन्ड, ब्रेक अल्फा बीटा बॉन्ड एंड चेंज OH to double bond O। Next, put 1 hydrogen atom on alpha carbon। ठीक है, चलिए ये 3 पॉइंट लिख लीजिए। आफ्टर दैट यू विल राइट अल्फा बीटा। अगर आपको क्या मिला रहे, सेकेंड पॉइंट, इफ अल्फा बीटा unsaturated aldehyde or ketone is given, चलिए यहाँ पे लिखेगा। So can you scroll up? चलिए
Done. Yes, sir. So if you have been given something like this, ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों को शायद आसान वाला दें, इनको हार्ड वाला दें, तो ये क्या वाला दें? आसान दें पहले, फिर आसान वाला लिखिए. If you have something like this, you have CH3, तो हटाओ CH3, बॉन्ड लाइन लिखो तो आप लोग यार बड़ा CH3 हो गया, डबल बॉन्ड, फिर डायरेक्ट CHO आ जाएगा, CHO आ जाएगा, CHO आ जाएगा, हाँ CHO. चलिए ठीक है. तो यहाँ पे क्या करना है, फिर से वही चीज, आपको अल्फा और बीटा पहले आइडेंटिफाई कीजिए. दिस इज योर अल्फा, दिस इज योर बीटा ना, ये फंक्शनल ग्रुप है आपके पास, तो अल्फा बीटा आइडेंटिफाई हो गया. अरे भाई समझ लो यार, पहले समझ लो, लिखने ही पे लगे हुए, हाथ पेन वेन रखिए बिल्कुल आराम से, यहाँ पे देखिए. ठीक है, बस यही करना है आपको. अल्फा और बीटा में ब्रेक कर दिया. Once you have broken the alpha and beta, what you need to do is, जो बीटा वाला फ्रैगमेंट है ना, वहां पे डबल बॉन्ड O में ऑक्सीजन लग जाएगा. So you have CH3, ठीक है. Then you will have this carbon atom. This carbon atom will have double bond O. और यहाँ पे अगर आप आइडेंटिफाई करें ना, so this particular carbon atom will be already having a hydrogen because it is having 1, 2, 3 bonds. अगर किसी बॉन्ड 3 बॉन्ड बने तो एक क्या होगा, हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट होगा. ठीक है ना. सो दिस हाइड्रोजन विल बी ऑलरेडी प्रेजेंट, वो यहाँ पे है मौजूद. अल्फा में आपको क्या करना है, अल्फा में आपको बस यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन ऑलरेडी मौजूद है, यू ऑलरेडी हैव अ हाइड्रोजन एटम देयर. सो आपको वहां पे 2 हाइड्रोजन दे देने हैं, बस क्या करना है, वहां पे 2 हाइड्रोजन दे देने हैं. यू विल राइट इट लाइक दिस, ये CHO है आपके पास, दिस विल बी CH3, CHO ऐसे ही का ऐसे. बात समझ में आई? अरे आया नहीं आया बताए मदीहा, आया? अच्छा, बेटा. देखिए यार गाइस, देखिए एक और देख लीजिए जरा, 1, 2 डबल बॉन्ड, CHO, ठीक है. दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, ठीक. अरे हाँ यार, आप कुछ तो बोलिए. अल्फा बीटा है. Yes, sir. चलिए, आपने इसको किया ब्रेक. वंस यू हैव ब्रोकन इट, आपको क्या मिलेगा, कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन. ठीक है. सो यू राइट CH3, CH2 एंड देन दिस कार्बन ऑलरेडी हैज अ हाइड्रोजन, यस और नो, प्लीज टेल मी. Yes. है. तो इस कार्बन के पास ऑलरेडी हाइड्रोजन. नाउ दिस कार्बन विल गेट व्हाट, बीटा को क्या मिलता है, Oxygen. डबल बॉन्ड O. ठीक है. प्लस ध्यान से देखिए, व्हेन यू हैव दिस इज व्हाट, दिस इज कार्बन एटम, लिखो मत अभी, देखो CH3. नाउ अल्फा के पास कितने हाइड्रोजन्स हैं, हाउ मेनी हाइड्रोजन्स इन अल्फा? अरे गिन के बताओ, ऐसे तुक्का नहीं कोई मारेगा. बॉन्ड्स गिनिए, फिर 4 माइनस बॉन्ड कीजिए, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 4 माइनस बॉन्ड्स ना, करो. हाँ कितना है इरम, मदीहा? इसको करना पड़ेगा मदीहा को, मदीहा ऐसे ही गिन लो यहीं पे, देखिए कितने बॉन्ड्स हैं यहाँ पे. अल्फा हैज हाउ मेनी बॉन्ड्स, 3. हम 3. देखो यार गिनो ऐसे, 1, 2 ऐसे करके गिनो. स्क्रीन में हाथ रख, अरे स्क्रीन में हाथ तो रखो, स्क्रीन में हाथ रख. 1 क्यों बोल रहे हैं? हाँ, यू विल पुट हैंड लाइक दिस ना ऑन द स्क्रीन. क्या है ऐसे, ऐसे गिनिए, 1, 2, गिना आपने? Yes, sir. Like 1 and कित- 2 bonds. No, 2 3 बॉन्ड है, actually. और है, देखो और कहीं से देखो. 4. अरे तुक्का मार रहे हैं क्या, 1, 2, 3, 4, 5 बोल देंगे क्या, फिर से हम पूछेंगे तो? हाँ ध्यान से देखिए इधर, अरे काउंट तो करो, आप काउंट करोगे तब तो होगा. ये Yeah, I 1 बॉन्ड counted. Yeah. कितने हैं बताइए फिर, कितने हैं? 4. 4. हाँ, तो पहले 2 था, फिर 1 भी हुआ, फिर 3 भी हुआ, 4. गिनिए एक बार में से, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे बताइए, हाउ मेनी हाइड्रोजन गाइस? हाँ मदीहा, हाउ मेनी हाइड्रोजन्स? Uh, हाँ, अरे यार हाइड्रोजन इज इक्वल टू 4 माइनस बॉन्ड, बॉन्ड्स कितने हैं? so 4 bonds. Okay, yeah. So 0. 4 minus 4 0. हाँ, 4 minus 4 is equal to 0. So now
अल्फा को क्या मिलता था, ये बात तो मतलब हाइड्रोजन काउंट करने में इतना टाइम लगा दिया, बताइए। बीटा गेट्स ऑक्सीजन एंड अल्फा गेट्स, बोलो भाई, अल्फा को क्या मिलता था, 2 हाइड्रोजन, है ना, CH2 मिल गया, इधर CHO एज इट इज। समझ में आया सबको? और देखेंगे सीयर गाइस। सीयर, ये आपका फंक्शनल ग्रुप, दिस इज योर अल्फा, है ना, एंड दिस इज योर बीटा। यू विल ब्रेक इट, बीटा में कितने, 1 2 3, ऐसे ही बना दीजिए आप इसको, और यहाँ पे इसको डबल बॉन्ड कैसे, सही है ना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। प्लस दी अल्फा विल गेट हाउ मेनी हाइड्रोजन्स, इसके पास कितना हाइड्रोजन है अभी बताएं, हाउ मेनी हाइड्रोजन डज अल्फा ऑलरेडी हैव, 1. 1, है ना। अरे ये हाइड्रोजन गिनने नहीं आया ना मदीहा, अगर बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। सो वी विल हैव 1 हाइड्रोजन ना, 2 हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा, सो यू विल बी हैविंग CH3, देन यू हैव C डबल बॉन्ड O, और इधर भी CH3, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली द अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट ऑफ एसीटोन। छापो भाई छापो, हम तो इतना डर गए, इतना टाइम लगा रहे हैं, हमने सवाल ही नहीं दिया आप लोगों को, 3 सवाल हम ही नहीं करा दिए। दोबारा घर में वापस आप बैठिएगा तो फिर कीजिएगा दोबारा से इनको, समझ आया? आप लोगों को देते, आप लोग 15 मिनट इसी में लगा देते। हो गया सबका, तो आगे बढ़े। चलिए So 1 minute. इसमें लिख दीजिएगा, जल्दी से लिखिए, ब्रेक अल्फा बीटा डबल बॉन्ड, ब्रेक अल्फा बीटा डबल बॉन्ड। उसके बाद क्या करना है आपको, पुट डबल बॉन्ड O ऑन बीटा कार्बन एंड पुट 2 hydrogens on alpha carbon. Is everyone done? Yes or no? Please tell me. नहीं, not done. तारीफ का नहीं हुआ अभी। शावेज is also writing. ठीक है, आराम से लिखिए। Done? चलिए। इसके बाद लिखिएगा आप लोग Cannizzaro reaction. Right, next. अब तो हम नंबरिंग भूल चुके हैं, ठीक है, रिएक्शन का, तो लिखिए सीधा Cannizzaro रिएक्शन, ठीक है। Now, Cannizzaro reaction के लिए सबसे पहली बात, this is given by those carbonyl compound and only those carbonyl compound which do not have alpha hydrogen, जिनके पास alpha hydrogen नहीं है, सिर्फ वही लोग देंगे, बात समझ में आई? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट, it is given by those aldehyde and ketone which don't have alpha hydrogen, which don't have alpha hydrogen, ठीक है। तो देखिए aldehyde and ketones which
don't have alpha hydrogen undergo self oxidation and reduction. Oxidation and reduction in the presence of concentrated alkali. अरे रबा आप कहाँ गायब हो गई थी? आप कहाँ गायब हो गए थे? यही थे आप, क्लास में थे? जी सर, क्लास में थे पूरा टाइम। अच्छा ठीक। इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली, ठीक है। अब एक सवाल पूछेंगे, ठीक है, बड़ा हिम्मत करके पूछ रहे हैं आप लोग, जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। वी हैव सीन रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन भी देखा हम लोगों ने, टॉपिक लगाया था। ऑक्सीडेशन भी देखा है हम लोगों ने, हाँ या ना बताए, देखा है? हाँ गाइस, जी भाई, हाँ Yes, sir. पेज पलटिए, पेज पलटिए, बताइए। दोनों किया है हम लोगों ने, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन किया है। क्या है, क्या किया है ना? हाय हाय, Yes, sir. Yes, sir. क्या हालात हैं, ओ माय गॉड। बताइए, ऑक्सीडेशन जब होता है तो क्या मिलता है? इफ वी आर गोइंग टू ऑक्सीडाइज कार्बोनिल कंपाउंड, अच्छा एल्डिहाइड, चलिए कार्बोनिल में आप लोग कंफ्यूज, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या मिलेगा? Carboxylic acid. Aldehyde नहीं याद, क्या बोला मदिया आपने? व्हाट डिड यू से? नहीं याद? अरे भाई पेज पलटिए फिर तो मिल जाएगा। नहीं याद क्या आंसर होता है? हाँ, नहीं याद, पेज पलटिए, आंसर होगा वहीं पे, ठीक है। अच्छा ये बताइए, रिडक्शन से क्या मिलेगा? एल्डिहाइड के रिडक्शन से, इफ वी यूज अ रिड्यूसिंग एजेंट, है ना वो, वॉल्फ किश्नर और क्लीमेंसन Alcohol. रिडक्शन की। वेरी गुड शाविस, ठीक है। क्या है, आप लोग पढ़ाई कीजिए, इरम, मदीहा, बाकी सब लोग, ठीक है। ये कैनिजारो में कुछ नहीं है ना, कैनिजारो में क्या हो रहा है आपके पास, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो जो आपके पास एल्डिहाइड, जनरली एल्डिहाइड ही होने वाला है, यहाँ पे विल गिव टू एग्जांपल्स। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा और उसका रिडक्शन भी हो जाएगा, तो एक से कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरे से अल्कोहल। फॉर एग्जांपल, इफ आई हैव HCHO, फॉर्मल्डिहाइड, HCHO प्लस कंसंट्रेटेड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट इज गोइंग टू गिव यू। अब एक चीज का ध्यान रखना है आप लोगों को, आप इससे आराम से एक कार्बन एटम ना, सो एक कार्बन का अल्कोहल बना दीजिए, दैट विल बी CH3OH। दिस इज द रिडक्शन, ठीक है। अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो, रिडक्शन दिखाओ, ठीक है। प्लस आपको बहुत मन करेगा ये लिखने का, इसका अगर आप ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपको मिलेगा एसिड, एसिड क्या हो जाएगा, HCOOH हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड एक कार्बन का। अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो, है ना? नहीं, अरे मदीहा, इरम, रबा, तारीफ, ऊपर से जा रहा है क्या? बिल्कुल Yes, sir. Got it. गॉट इट ना। लेकिन ध्यान दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, दिस इज एन एसिड और वी आर यूजिंग अ रिएजेंट विच इज बेस, ठीक है। तो कुछ NaOH will be present in the solution, there will be some NaOH present in the solution, that is why we will not get the acidic form, rather we will get COONA। क्या मिलेगा आपको? COONA। मेक सेंस? यस और नो, प्लीज टेल मी गाइस। सही है, चलिए। Yes. अब उसी तरह से मान लीजिए, इफ यू हैव बेंजल्डिहाइड, अब इसके पास तो अल्फा कार्बन ही नहीं था, so there is no sense of alpha hydrogen here। if you look at benzaldehyde CHO in the presence of conc NaOH or conc KOH, conc मतलब concentrated, it will give, इसका क्या बना देंगे हम लोग, ध्यान रखना, फिनॉल मत बना देना भाई, एक कार्बन है यहाँ पे, so you will have carbon and then OH plus, अब बेंजोइक एसिड, इस कार्बन का ही क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। बात समझ में आ रही है? अरे भाई आप लोग ये मत हो जाइएगा कि सर यहाँ पे तो कार्बन होना चाहिए था, आप ये समझे, नंबर ऑफ कार्बन एटम शुड बी सेम, यहाँ पे भी 7 कार्बन एटम, यहाँ पे भी 7 कार्बन एटम, यहाँ पे भी 7 कार्बन एटम, इफ यू कैन काउंट, अगर काउंटिंग आती हो तो,
वरना कुछ लोगों तो बॉन्ड भी काउंट करने नहीं आता अभी तक। हाँ, बॉन्ड काउंट नहीं कर पा रहे थे आप। मेरा तो इतना दिमाग खराब हो रहा था, इतना गुस्सा आ रहा था हमको कि क्या ही बताएं हम। फिर भी हमने वो बर्दाश्त किया और हम पानी मंगवा लिए थे, तो पानी पिया। चलिए छापिए छापिए छापिए। There are things that you are best at ना, छापिए। There are a few things which you are best at. अरे यहाँ पे ना COH मत लिख लीजिएगा, यहाँ पे COOK लिखिएगा। पोटेशियम है ना, H मत लिख लीजिएगा, राइट? COOK। राइट, नेक्स्ट। अच्छा, क्लियर? All of you done writing? Yes, Yes. sir. Right, next, electrophilic aromatic substitution. Electrophilic aromatic substitution. अच्छा, अब ये तीसरी चौथी बार इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन आ चुका होगा, है ना? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जैसे ही आता है, मतलब आप लोग के अंदर कुछ फीलिंग आती है कि नहीं आती है? वो चैप्टर खत्म होने वाला है, ऐसा लगता है आप लोगों को? नहीं लगता है आप लोगों को? Yes. लगता है ऐसा? मतलब हमको ऐसा याद है बिल्कुल कि हैलो एल्केन हैलोरीन हुआ था हमारे टाइम में, फिर उसके बाद अल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स, है ना? फिर ईथर्स में हुआ, फिनॉल में हुआ, देन एल्डिहाइड और कीटोन्स में हुआ, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड आयन। तो मतलब बिल्कुल जानते हैं किसका फीलिंग आने लगता है? सूर्यनाश जानते हैं आप लोग? सूर्यनाश जानते हैं आप? नहीं जानते? Yes. आखिरी आखिरी सूरा है ना सूर्यनाश, नहीं है आखिरी सूरा, है ना? तो तरावी में किस, है ना, तरावी में जिस तरह से आखिरी सूरत सूर्यनाश की तिलावत होने लगती, तो अब मतलब अब तो खत्म है ना? या फिर सूर्य इखलास की तिलावत होने, तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन अब हमको लिखते वक्त वो फीलिंग आती जो हमको बचपन में जब पढ़ते थे ना, तो उस वक्त ये फीलिंग आती थी, अच्छा चैप्टर खत्म होने वाला, एटलीस्ट ये टॉपिक खत्म होने वाला, एल्डिहाइड वाला अब इख्तिताम तक आ चुका है ना? वैसे ही बिल्कुल फीलिंग आता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। और बिल्कुल ये जैसे आखिरी तीसरा पारा जैसे स्टार्ट होता है, देयर आर सूरज जो हम लोग सबको याद है ना? तो एक कंफर्टेबल सी फीलिंग आने लगती है। वैसे यहाँ पे भी वही सेम चीज होने वाला है ना, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन, एसाइलेशन, ये कुछ 4-5 रिएक्शन वो वापस से फिर से आ गए, है ना? चलिए, और बाकी जो 30 मतलब बाकी जो 29 पारा है उसमें जो कुछ हो रहा है वो तो पता नहीं रहता क्या हो रहा है। वैसे ही सारे चैप्टर्स का भी है कि बाकी के रिएक्शन का तो आता पता नहीं, कुछ भी हो रहा है। और इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जैसे ही आ गया, उस टाइम आपको हाँ अब कुछ आया जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था, है ना? ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, इस तरह से। ठीक है, तो प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो हम लोग ये देखेंगे मेटा डायरेक्टिंग है या फिर पैरा डायरेक्टिंग है ना? सो ऑब्वियसली carbonyl compound, these are electron withdrawing group, so that is why these are deactivating. Deactivating का मतलब these will be, their rate of reaction will be lesser than that of benzene.
ठीक है, तो ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते बिकॉज दे टेक अप द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द बेंजीन रिंग। ठीक है, सबसे पहले लिखिएगा यहाँ पे aldehyde and ketones are deactivating groups due to minus M effect. Hence, they give meta product. Hence, they give meta product. ठीक है, सो दे आर क्वाइट डीएक्टिवेटिंग, काफी ज्यादा डीएक्टिवेटिंग होते हैं. दैट इज वाई दे डोंट शो फ्रीडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन. तो दो रिएक्शन तो ये शो नहीं करते. देयर आर 3 रिएक्शन दैट दे शो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट फॉर बेंजल्डिहाइड, लेकिन आप देखिए, सिर्फ लिखिएगा बाद में जब हम कंप्लीट कर ले तो. ठीक है, सी राइट नाउ. CHO साथ साथ मत लिखिएगा प्लीज. ठीक है, so first of all you have Cl2 chlorination in the presence of FeCl3. So the product that you will be getting, अच्छा एक second, CHO as it is, and you will be getting in the meta position chlorine. ठीक है, उसी तरह से अभी हम प्रोडक्ट बाद में लिखेंगे, है ना. उसको पहले हम लिख देते हैं क्या अटैच होने वाला है, कहाँ अटैच होने वाला है. आई होप आप लोग को भी समझ में आ जाएगा. Cl2 and then when we are having concentrated HNO3, conc HNO3 plus concentrated H2SO4. So this is the reagent for nitration. So in the meta position you will get NO2, and when you are having only concentrated H2SO4, then in the meta position you will get SO3H. ठीक है, तो नाम क्या है इनका, राइट हियर, मेटाक्लोरो बेंजल्डिहाइड. इसका हो जाएगा क्या, मेटा नाइट्रो, मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड. अच्छा, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यहाँ पे, दिस इज नॉट गोइंग टू बी मेटा सल्फोराइड, ऐसा कुछ नहीं होगा. दिस इज सल्फोनिक एसिड है ना, बेंजीन सल्फोनिक एसिड होगा. सो दिस विल बी मेटा ऑक्सो बेंजीन सल्फोनिक एसिड. यही नाम होना चाहिए इसका. कॉमन नेम राइट, क्या, ये कॉमन नेम है ना. नहीं कुछ कॉमन नेम नहीं है. क्यों कॉमन नेम होगा, आईयूपीएसी. हाँ आईयूपीएसी है. मेटा मेटा वगैरह यूज कर सकते हैं ना, बेंजल्डिहाइड, नाइट्रो, ऑल ऑफ दीज आर व्हाट, ऑल ऑफ दीज आर तो ये होंगी ना. डैश लिख लग जाएगा. मेटा वगैरह यूज कर सकते हैं हम लोग इसमें आईयूपैक में. ओके ओके सर.
कंफर्म कर लेते हैं, मेटा ऑक्सो बेंजीन सल्फोनिक एसिड होना चाहिए या फिर मेटा फॉर्माइल होना चाहिए। तो आपके इसमें तो कुछ और किया ही नहीं रहा। आपकी एनसीईआरटी में वैसे बस एक ही रिएक्शन दी हुई है, बट प्रोडक्शन ऑफ दैट्स दी एम फॉर्माइल लिखिए चाहे आप एम ऑक्सो लिखिए, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। है ना, मेटा ऑक्सो की जगह ना यू राइट इट मेटा फॉर्माइल, दैट विल बी बेटर बिकॉज ऑक्सो समटाइम्स ओनली रिप्रेजेंट्स दी सी डबल बॉन्ड ओ। इसको मेटा फॉर्माइल कर लीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। Formyl will represent the C double bond O also. I mean the carbon also. Oxo generally represents only double bond O. अच्छा ये क्या है? This is benzaldehyde. Benzaldehyde. अब similar reaction is shown by acetophenol also. ठीक है। बस आपको यहाँ पे क्या चेंज करना पड़ेगा बता दे रहे हैं। This will not be benzaldehyde obviously. रुकिए अभी लिखिएगा मत। This will be C double bond O and CH3, ठीक है। बाकी सब जगह भी वही हो जाएगा, C double bond O and CH3. This is the acetophenol, CH3। अब ये आप कैसे भी लिख सकते हैं, आप C डबल बॉन्ड को O को इधर रख दीजिए, CH3 को इधर रख दीजिए, ये भी चलेगा, ठीक है। आपको जैसे लिखना लिखिए, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। आपको सीधा सीधा लिखना है, आपको CH3 ऐसे लिखना है, आप ऐसे लिख दीजिए, C डबल बॉन्ड ऐसे लिखना है, ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। दैट्स नॉट थिंग टू वरी अबाउट। हाँ, बट नेम विल ऑब्वियसली नॉट दीज, ये नाम नहीं होंगे, और ये भी नाम नहीं होगा। एसिटोफेनॉल, this will be M chloroacetophenol. This will be M nitroacetophenol. ये हो जाएगा M एसिटाइन, M एसिटाइन बेंजीन सल्फोनिक एसिड। Is everyone done? जी हाँ, सबने लिख लिया।
No, sir. आराम से लिखिए। डन हो गया सबका? Yes, sir. डन ना? चलो, Yes. सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये आपका एल्डिहाइड कीटोन्स वाला पार्ट खत्म हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड इज रिमेनिंग। कार्बोक्सिलिक एसिड तो हम इतना स्पीड पढ़ाएंगे, एक दो क्लास का होता है। आप लोगों ने जो एल्डोल के साथ किया ना, वो हम कार्बोक्सिलिक के साथ कर देंगे, लेकिन उसका उल्टा। कार्बोक्सिलिक एसिड एक दिन में खत्म, फिर आपको समझिएगा थोड़ा खुद से, ठीक है? अच्छा, टेल मी व्हाट चैप्टर शुड आई स्टार्ट आफ्टर दिस? चैट में लिखिए आप लोग प्लीज, चैट में लिखिए, चैट में लिखिए, फिर हम एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा क्या चैप्टर पढ़ाना है। तारीफ Shahid is also for chemical kinetics. Rabba also chemical kinetics. नहीं होगा मदिया, सॉरी। आई थिंक चार का जो ओ एरम आल्सो, अच्छा हो सकता है तब, बट आई थिंक chemical kinetics is winning, guys. So obviously chemical kinetics, ठीक है? कोऑर्डिनेशन वाले जो लोग हैं ना, कोऑर्डिनेशन में क्या दिक्कत आ रही है बताइए तो जरा। मदीहा एंड इरम, पढ़ रहे हैं आप लोग खुद से कोऑर्डिनेशन? मदीहा, Sir started in our class and like I can't understand nomenclature. नॉमेनक्लेचर नहीं समझ में आ रहा आपको? ठीक है। Yes. इरम, आपको क्या दिक्कत आ रही है? व्हाट? कुछ भी नहीं आ रहा है? ठीक है, हमको आप लोग प्लीज मैसेज कर देंगे हमको, सर प्लीज सेंड मी कोऑर्डिनेशन, लाइक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ठीक है? मैसेज कीजिए हमको, हम आपको रिकॉर्डिंग्स भेज देते हैं, ठीक है? चलिए, रिकॉर्डिंग्स और साथ साथ नोट्स भेज देंगे, देखिए। हाँ Recorded lecture of the जी, class which I missed. आपको भी चाहिए? जिनको भी कोऑर्डिनेशन के रिकॉर्ड, हाँ बोलिए Coordination का बोलिए। नहीं सर, आपने मुझे रिमाइंड कराने बोला था, मैं उस क्लास में भूल गई थी ट्यूसडे के दिन। हाँ ठीक 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 ठीक, चलिए ठीक है, ठीक है, आपने याद दिला दिया। असर्शन रीजन वाले सवाल बच्चों देख लीजिए जरा, स्टे इन द क्लास। असर्शन रीजन वाले सवाल ना, ठीक है, ध्यान से। ऑप्शंस याद है आपको? असर्शन रीजन में क्या क्या होता है Yes, sir. याद है ना? ऑप्शन क्या क्या होते हैं बताइए। पहला ऑप्शन क्या होता है? Both assertion and reason both are correct, and R is the correct explanation of and reason is correct explanation of assertion, ठीक है? B, assertion and reason both are correct, but but R is not the correct explanation of it.
नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. सी ऑप्शन आता है आपके पास, assertion and And R is assertion is false. correct, R is false. R is correct. Correct and the reason is false. या incorrect, जो भी हो। तो इसमें आता है assertion is incorrect. False and R is true. ठीक है, सुनो। Now, whenever you have been given assertion and reason ना, तो आप एक स्टेटमेंट और खुद से बना लीजिएगा, assertion because reason. बस assertion पढ़िए, whatever assertion is written, और उस बीच में लगा दीजिए because, ऐसे पढ़िएगा आप, है ना, assertion whatever is assertion is written ना, you will read that statement, आप फिर you will add the word because and then you will read the reason. ठीक है, तो आपको याद रहता है दो स्टेटमेंट, you will have to add one more statement here, assertion because reason. ठीक है, ऑब्वियसली देखिए, अगर आपको मतलब आपने थ्योरी पढ़ी है उसके बाद assertion reason नहीं आ रहा, तो उसका सोल्यूशन हम बता रहे हैं, है ना, कि आपको थ्योरी पता है कम से कम कि हो क्या रहा है, बट आपको assertion reason नहीं आ रहा, बाकी सारे सवाल हो जा रहे हैं assertion, अपनी थ्योरी ही नहीं पढ़ी है, कंसेप्ट ही नहीं पता है आपको, तब तो नहीं होंगे सवाल। ठीक है, पहली चीज तो ये, वंस यू नो द कंसेप्ट, उसके बाद बाकी सारे सवाल हो रहे हैं, assertion reason नहीं हो रहा है या फिर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो उसके लिए आपने ऐसे लिख दिया है इनको assertion reason। अब देखिए आपके पास कुछ ही केसेस बचते हैं, इफ ऑल ऑफ दीज आर ट्रू, ये आप ट्रू है, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, ट्रू फॉल्स तो कर सकते हैं ना, कोई स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो बताइए इफ ऑल ऑफ दीज थ्री आर ट्रू, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा रबा? A. है ना, ए हो जाएगा। अच्छा चलिए, मान लीजिए पहला भी ट्रू है, दूसरा भी ट्रू है और तीसरा फॉल्स आ रहा है, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? B. बी। इफ फर्स्ट वन इज ट्रू और दूसरा वाला फॉल्स है, तो ऑब्वियसली आपके पास तीसरा कोई ऑप्शन तो नहीं बचता है ना, फिर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। Yes, sir. और दूसरा उसके बाद फिर क्या है आपके पास, ये पहला फॉल्स आ गया और ये ट्रू आ गया, तो फिर ये भी क्या हो जाएगा? डी। देयर कैन बी अनदर ऑप्शन जहां पे दोनों ही फॉल्स हो जाए, ठीक है, बोथ ऑफ दीज आर कैन बी फॉल्स, तो वो ई ऑप्शन जनरली सीबीएसई उसको नहीं देता। दिस इज ए ऑप्शन, दिस इज बी ऑप्शन, दिस इज सी ऑप्शन, दिस इज डी ऑप्शन, है ना, ई ऑप्शन जनरली आपके इस केस में नहीं रहता। अब एक काम करते हैं, चलिए मे बी आई विल गिव यू अ क्वेश्चन, है ना, तो फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। कौन सा चैप्टर आपका ठीक है, बताइए रबा, कौन सा चैप्टर से दें? Yes, Rabba, tell me. Sorry, Solution. solution से दें। अच्छा, जो अभी चलिए, अभी एक टेस्ट हुआ था ना solution का, we had a test ना, दिया था आपने रबा? आपने दिया था नहीं दिया था, याद नहीं हमको, तो पेपर हमने चेक किया है, रबा ने दिया था, शायद दिया था। रबा, you gave the test? Sir, the recent one I didn't give. ये अभी जो नहीं हुआ था, अच्छा ये आप नहीं दिया, ठीक है चलिए। क्लास 12th solution, ठीक है, दो स्टेटमेंट दिए मैं आपको, और आपको एक तीसरा स्टेटमेंट खुद से लिख देना, assertion because reason, ये आप पढ़ने वक्त बस आपको लिखना नहीं है, आपको बनाना है ये स्टेटमेंट, है ना, assertion because reason। पहला आप सवाल पढ़िए, when NaCl is added to water, depression in freezing point is observed, true या false, क्या ख्याल है आपका? जी रबा, बाकी लोग जी, रबा आप बताएं। Sir, A is the option. ए है इसका ऑप्शन, Yes, sir. ठीक है, तो फिर क्या दिक्कत आ रही है आपको, बताइए, कोई ऐसा सवाल बताइए जो मतलब जो हम इसमें देते हैं असेसमेंट में, जो सवाल रहते हैं वो नहीं आता आपको? Yes, sir. असेसमेंट वाला सवाल दे, ठीक है चलिए, असेसमेंट वाला एक सवाल ले लेते हैं। अभी तो असेसमेंट नहीं हो रहा है आपका कुछ दिनों से, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हाँ चलिए इसमें ले लेते हैं। अब ये पता नहीं आप याद,
एक ये रिएक्शन, एक ये था सवाल जो पहले टेस्ट में आया था शायद। इटार्ड रिएक्शन हेल्प्स टू स्टॉप द ऑक्सीडेशन ऑफ टोलुइन एट एल्डिहाइड स्टेज। बताइए क्या ख्याल है? व्हाट इज इटार्ड रिएक्शन में आपको क्या मिलता है? Sir, B is the option for this. अरे भाई बी, ये आप अपने से क्यों बोल रहे हो? एक एक करके ये करो ना, ये तो दिक्कत है। सीधा आप लोग आंसर पे जाना चाहते हैं। असर्शन बिकॉज रीजन, आराम आराम से जाएं। ऐसा वैसे रीड करके ही बोला मैंने, नहीं, बिकॉज अब पहले बताइए ये ट्रू है पहला वाला स्टेटमेंट? ट्रू है? नो सर, retard True reaction है। does not give up. True ठीक है, है? हाँ ट्रू है। रीजन? रीजन बताइए, टेक्स्ट बुक में देख के आप बोल दीजिए। चलिए, ये आपके पास ईटार्ड रिएक्शन पर, एक सेकेंड, ईटार्ड रिएक्शन आपको सेकेंड, हाँ ये देख लीजिए। Sir, B is for रीजन क्या है? क्रोमाइल क्लोराइड ऑक्सीडाइजेस द मिथाइल ग्रुप टू क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, है ना? क्रोमाइल क्लोराइड यूज हो रहा है यहाँ पे, और एक आपको ब्राउन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स भी मिल रहा है, राइट? विच ऑन हाइड्रोलिसिस, ये बिल्कुल तो वही स्टेटमेंट है। इट फॉर्म्स अ क्रोमियम कॉम्प्लेक्स एंड ऑन फर्दर हाइड्रोलिसिस इट गिव्स बेंजल्डिहाइड। तो रीजन भी तो ट्रू है। रीजन ट्रू नहीं है? बताइए ऐसा इसमें non-polar solvent था sir. अच्छा. क्या? In that statement, non-polar solvent is also written. I got confused. नहीं नहीं नहीं, वही हम देखिए, सॉल्वेंट का जो काम है ना, सॉल्वेंट का जो काम है यहाँ पे, सॉल्वेंट का काम है सिर्फ और सिर्फ क्या करना, सिर्फ और सिर्फ आपका रिएक्शन जहां पे होता है उस जगह पे बने रहे। इस पर्टिकुलर केस में सॉल्वेंट केमिस्ट्री ना आपके लिए नहीं है वैसे, है ना? जो जी एडवांस पेपर देते हैं बहुत कम, उसमें भी बहुत कम सॉल्वेंट केमिस्ट्री आती है। द रीजन वाई वी आर यूजिंग अ नॉन पोलर सॉल्वेंट हियर इज बिकॉज पोलर सॉल्वेंट हम लोग नहीं यूज कर सकते हैं। वाई वी कांट यूज पोलर सॉल्वेंट? पोलर सॉल्वेंट अगर यूज करेंगे तो क्रोमाइल क्लोराइड का क्रोमिक एसिड बन जाएगा, H2CrO4 बन जाएगा। इट विल रिएक्ट विथ वाटर, क्रोमाइल क्लोराइड विल रिएक्ट विथ वाटर और आपको H2CrO4 मिल जाएगा। और क्रोमिक एसिड, सॉरी, क्रोमिक एसिड जो होता है, क्रोमिक एसिड इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और वो फिर आगे जाके बेंजल्डिहाइड तक नहीं रुकेगा, वो बेंजोइक एसिड बना देगा। ठीक है, तो दैट इज द यूज ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट। लेकिन आपके केस में रिएक्शन देखना है, ठीक है? सो व्हाट हैपेंस विद ब्रोमाइल क्लोराइड? ये भी ट्रू है ना? ब्रोमाइल क्लोराइड ऑक्सीडाइजेस मिथाइल ग्रुप टू अ क्रोमियम कॉम्प्लेक्स व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव करस्पॉन्डिंग बेंजल्डिहाइड। सॉल्वेंट कभी भी रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करता, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? सॉल्वेंट अगर रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहा है तो उस सॉल्वेंट को निकाल दिया जाता है, बिकॉज सॉल्वेंट फिर वो हिंडर करेगा ना रिएक्शन को। तभी तो हम लोग यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट अगर लेते तो पोलर सॉल्वेंट रिएक्शन में हिंड्रेंस पैदा करता, दैट इज व्हाई वी आर नॉट टेकिंग पोलर सॉल्वेंट और वाटर फॉर दैट केस। बोथ ऑफ दीज आर ट्रू। एंड ये आपको अगर एजर्शन पढ़िएगा, रिटार्ड रिएक्शन हेल्प्स टू ऑक्सीडाइज, helps to stop the oxidation of toluene at the aldehyde stage because chromite chloride oxidizes the methyl group to a chromium complex which on hydrolysis gives corresponding benzaldehyde. So assertion is about stopping at aldehyde stage and reason is giving you the reason ना, due to यहाँ पे आ रहा है ना, which on hydrolysis gives corresponding benzaldehyde. So even assertion because reason is also true. ऐसा नहीं कि इन दोनों का कोई रिलेशन ही नहीं है। बस समझ में आ रही है आपको रबा? Yes, sir. देयर इज अ रिलेशन बिटवीन बोथ ऑफ दीज ना। जब भी आपके पास इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन हुआ तो इट इज ऑल्सो ट्रू, असर्शन बिकॉज रीजन। ऑप्शन सही हो गया तो आपके पास ऑप्शन आएगा ए का। गॉट इट? Yes, sir. जी, आप तीन स्टेटमेंट के लिए ना ट्रू ट्रू आपको देखिए, अगर आपको समझना है कि असर्शन रीजन में कहां पे दिक्कत आ रही है